Okay. Okay, I'm so sorry about that. हमारा मेरा थोड़ा सा क्रैश हो गया था, सारा सीन सारा सेटअप क्रैश हो गया था. Okay, so coming back to that, Maheen, I'm so sorry about the inconvenience. Coming No back to problem. that, Hmm. what is social media? Since you're a digital marketing consultant and you're a digital creator, Hmm. what is social media? When we say social media, what is it? Social media is basically Facebook, Instagram, anything that connects you to the world, anything that virtually connects you to the world, because the world has Yeah, become a global village. So when we say that the world has become a global village, we mean that, obviously, गाँव में लोगों ने आपने देखा होगा, people are so connected. The news travels fast. Everyone knows the other person. That's why the world has become a global village because of social media. Because now we're connected to people who are so far away from us, we can't physically meet them, but yeah, we are still connected to them. So this is how we have all stayed connected even during the course of this pandemic, during coronavirus, and during the lockdown situation. The only thing that I think saved me from losing my mind was social media. I think that I also partially lost my mind to social media, but it also yeah. some in some ways it also saved me. So yeah. Yeah, but so is it because you use the social media the right way? मतलब बहुत से लोग होते हैं, they don't use it the right way. और बहुत से Yeah. लोगों को सोशल मीडिया से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें उनके अंदर एक डेवलप होती है. Why is that? Because I think they don't use it for the right reasons. They use it to harass people. I think that ultimately, if you're using something to with the very like we're looking for a very negative outcome from using Yeah, social media. If you're मैंने देखा बहुत सारे लोग, people are just hating on each other for no reason. बस एक उसको गाली दे रहा है, दूसरा उसको गाली दे रहा है. This is what you're doing on social media. So ultimately, you are gonna get depressed because you are putting a lot of your energy in negative things. You're not yeah, putting your energy in the positive side of social media. You could do courses, freelancing की इतनी opportunities हैं that you can use social media to do. Like I use social media for my clients, उनके handle करती हूँ, and then I also handle mine. Like I want to talk about productive things. I want to share yeah, positive and funny stuff on my social media, so that whenever people see my name, they know that they're not gonna get depressed if they see my post. So like I think that if you yeah, use social media, even if you are depressed, I get that sometimes you're so depressed, you want to share sad songs, you want to talk about sad things, but I think that uh, using social media for a very excess amount of time, just like if you take drugs, तो आपके माइंड में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको इससे एडिक्शन होती है. इसी तरह जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जब आपको लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं, तो जो आपको साइकोलॉजिकल रिएक्शन मिलता है, इट्स वेरी सिमिलर टू ड्रग्स. yeah. That is why It, some people get addicted to social media, because of how their brain reacts when they get admired by people, or when they get a lot of positive appreciation from people. So I think that's and why a part of our generation is addicted to social media. I am But one of them. I am addicted to social media, but not much. मतलब मुझे पता है कि अच्छा this is a screen और इसमें चीजें जो आएंगी, it should not go over there, or it should not affect my mind, because it's not just the good things. Criticism भी बहुत होता है आजकल. I don't know why people have gotten so casual in insulting people. क्रिटिसाइजिंग, Ah, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. आप किसी को मोटा कैसे कह सकते हो? आप किसी को अगली कैसे कह सकते हो? body shaming is just, वो तो हमारे कल्चर का हिस्सा है. I think it's not just social media, it's a part of our culture. Body shaming is a part of our culture. आप मतलब मोटी इतना लग रहे हो. कैजुअली किसी को आप कहते हो, आज हाँ, आज तुम अच्छी नहीं लग रही, आज तुमने ऐसे नहीं किया, हाँ. मतलब you ruin someone's day, what you don't realize that. और How इन सम केसेस, इन सम एक्सट्रीम केसेस, यू हैव ruined someone's life, क्योंकि इट जस्ट exactly गोज अप देयर और वो आपको डिप्रेशन में ले जाता है. true. तो Okay. सोशल मीडिया, व्हाई सोशल मीडिया हैज गॉटन सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? हम बुक से दूर हो गए हैं, हम स्क्रीन्स के करीब हो गए. व्हाई इज दैट? Mhm. Because हमारे, I think that we are not dividing our time. We don't divide our time. Like we know कि मतलब I personally what I do is that if I always reading a book, even though अगर मैं एक पेज भी पढूं, एक पैराग्राफ भी पढूं, हफ्ते में हाँ, 2 पैराग्राफ पढ़ लूं, but I have this habit that I want to always read a book. So I keep my book with me कि जब भी कहीं मुझे फारिग टाइम मिले, I'll just go and read it. But yeah, the thing is that when you are on social media, so you get to interact with a lot of people who come from
very different backgrounds. Some people think that it's okay to abuse online. हमारी शक्ल तो जा नहीं रही है, but people don't know कि पूरा cyber crime का cell है, and you could get in a lot of trouble if you're harassing someone online. So I think that negative energy that revolves around social media is there, but there are also very like positive outcomes of using social media as well. You're connected to your friends during the lockdown or pandemic के दौरान, तो you know I would have lost my mind if I did not have social media. Like, what do you do all day long if you don't have social media? Exactly. You can't read a book the whole day. Yeah. No. You can't talk to your husband. You can't talk to your parents all the time. True. You can't talk to your husband the whole day. You can't do that. You can't do that. It's daunting. It's impossible. And like, क्या बात करें अब, and then it gets really weird. Then you have to talk. Obviously, you have friends. Then you can talk to them if you have friends. मतलब मेरी जितनी भी friends हैं, they live abroad. So like for me, social media is a very essential part of my entire routine. I want to stay connected. So if you're using social media for the positive reasons, then you're good. But if you're using it to malign other people, to harass other people, to body shame people, and then having like फजूल के arguments में जो पढ़ते हैं हम लोग, फजूल की criticism आती है, फजूल का, it doesn't make sense to me at all. Like you could put all of that energy into doing something productive. So I think that is also very important. And then what they do is कि असल में जो आप लोगों को criticism आ रहा होता है, they don't realize कि वो किसी की image बना रहा है, and you're actually ruining the image. लोग ये बात बिल्कुल realize नहीं करते हैं. अच्छा माहीन, मैं एक question मेरा है about mental health, and that is कि आजकल ना किसी से पूछो ना क्या मैं बहुत depressed हूँ, मेरे साथ बात मत करना. मतलब why are they unable to differentiate between stress, anxiety and depression? या मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरे से बात मत करो, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मुझे 2 घंटे डिप्रेशन रहेगा. What is this? ये क्या है? डिप्रेशन रहेगा. That's interesting. अब पता है क्या बात, डिप्रेशन को sometimes हम sadness से भी associate कर देते हैं. So for women, I think that it's a hormonal change. For example, when you're menstruating, so you are very sad. You get mood swings that you only understand if you talk to someone about it. They won't understand, because this is a phase during that part of the month where you are not rational. You just want to shout at people. You just want to cry. You have this influx of emotions coming in. You don't really understand that. But sometimes we mistake it. Like we think that is depression, but that's actually just simple sadness. Yes, those are just the moments. Anxiety is like a loop of thoughts that you go into. वो जरूरी नहीं कि वो sad thoughts हैं. You are just anxious about what's going to happen next. Like what will happen when I go through that part of my life where I'll have to do something about something in my life that's not going right. तो वो हम anxious हो जाते हैं. फिर उस anxious में हम क्या ज़्यादा टांगे हिलाना, बार-बार हम टांगे हिलाते रहेंगे, अपनी सोच में जाते रहेंगे. किसी हाथों को यूं करना, बार-बार बालों को कुछ नेल बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं. और फिर जब when you're in that state of mind ना, तो you think that nothing is working out, and then you just like एकदम से you snap कि अब बस खत्म हो गया, now I'm just going to cry for the next 2 hours. But depression is very different from sadness. Depression is a very real thing. Like you don't feel like doing anything. You don't feel like taking a shower even. You don't feel like getting up from the bed. That is very different. People who are depressed never talk about depression. इस तरह से never talk about it. And then they say that people who are depressed ये सबसे ज़्यादा हंस रहे होते हैं. Yeah, that's true. सबसे ज़्यादा वो खुश. Yeah, that is their outlet of, और वो उनके अंदर क्या चल रहा है, they only understand that. They can't express themselves because वो इतने depressed हैं कि उनको express भी करना नहीं आ रहा. So whenever people say कि social media पर कि यार मैं तो बहुत depressed हूँ और ये है, तो हम लोग को हमेशा उस चीज को seriously लेना चाहिए. बेशक हमें अभी नहीं पता कि वो अगला बंदा sad है या actually depressed है. तो जब भी कोई कह रहा हो, I don't think that we should invalidate their feelings by saying कि यार तुम तो हर वक्त ही sad रहते हो, तुम्हें पता ही नहीं है depression का क्या मतलब है. ये नहीं. Like what we don't do as a generation and as a qawm, I think is that we invalidate each other's feelings a lot. Because that's what our elders taught us. कि तुम क्यों सीरियसली, तुम ये क्यों इतनी सीरियस बात ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में क्या मसला है, सब कुछ तो दिया है तुम्हें हमने. जो हमारी लाइफ के मसले हैं उनको इनवैलिडेट शुरू से किया गया है, शुरू से किया जाता है.
और फिर सबसे पहले अगर किसी को बताओ ना दैट यू सैड, यू नॉट फीलिंग वेल, तो सबसे पहले बात आती है, क्यों, यू हैव अ गुड लाइफ, यू हैव कार, यू हैव गुड मनी, यू आर डूइंग गुड जॉब, तुम क्यों सैड हो, व्हाई यू सैड? सो Exactly. डिप्रेशन इज नॉट रिलेटेड टू मनी, वेल्थ, इट्स रिलेटेड टू हेल्थ. दिस इज व्हाट वी Exactly. दिस इज व्हाट वी आर लैकिंग एज ए नेशन. हम लोग नहीं सुनते हैं, हम लोग नहीं पूछते, और कुछ लोग तो मतलब बताना पसंद ही नहीं करते, बाय नेचर लोग कहते हैं Exactly. कि वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. हमारे माँ बाप ने हमें क्या कि अच्छा ये गाड़ी ले लोगे तो तुम खुश हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे. फलाने बंदे से शादी कर लोगे तो तुम खुश हो जाओगे, फलानी चीज ले लोगे तो तुम खुश हो जाओगे. बट what we don't realize is that ये सब worldly चीजें हैं. The things that we don't talk about is our spiritual connection, spiritual well-being. No one talks about that. Like we have become so materialistic that we don't feed our souls as such. Yeah, So when you don't feed a soul with the things that the soul needs, so the soul is going to get depressed. That is, I think, very एग्जैक्टली, important. एग्जैक्टली. और फिर हमारे देसी कल्चर में स्टार्ट से, एक तो जो लड़की के साथ होता है ना, वो अगर ये माहीन बोल देना कि मेरा दिल नहीं कर रहा, तो हमारी माएं ज्यादा ताने देंगी, ज्यादा उसका दिल जलाएंगी कि इसका पित्ता मारो, इसने आगे ससुराल में जाना है. Exactly. ऐसे ही है. एंड You दैट आई थिंक, एग्जैक्टली, इसका पित्ता मारो किसी तरह, इसकी ये नखरे बाहर नहीं, वहां नहीं सहे जाएंगे. हाँ एंड आई नहीं थिंक सही. यही जनरेशन जब आगे जाती है तो वही डिप्रेस्ड कौन होती है, वही डिप्रेस्ड होते हैं, इसलिए औरतें शायद ज्यादा डिप्रेस्ड होती हैं. और बिकॉज औरतों में एक तो आप हार्मोनल चेंजेस अगर आप बायोलॉजिकली भी देखें तो औरतें जो हैं दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस वेरी A रियल lot of वेरी. changes, yes. तो वो जब चेंजेस के साथ जो है ना वो खुद भी अपने आप को चेंज करती रहती है टाइम के साथ. औरत मुझे लगता है कि हम टाइम के साथ ज्यादा चेंज होते हैं एज कम्पेयर टू मैन. लाइक every year, every month, I think that we change. There's a part of our personality that changes because of the things that we have been taught कि भाई आप पावर की हाँ, पोजीशन में नहीं आ सकते कभी. पावर की नहीं पोजीशन आ में हमेशा सकते. आपका मर्द ही रहेगा. और जब आप किसी को भी पावर की पोजीशन में कर दो, बेशक वो औरत हो या मर्द हो, जब आप उस वो आपके ऊपर जुल्म ही करेगा क्योंकि आपने उसको एक पावर की हाँ, पोजीशन पे दे दिया है कि तुमने सबको प्लीज करना है बिकॉज यू आर अ वुमेन, सो यू आर सपोज टू प्लीज अदर पीपल. एंड व्हेन शी फेल्स टू डू दैट शी थिंक्स दैट शी इज अ फेलियर. शी फिर इज अ वो फेलियर. डिप्रेशन और फिर एंड सैडनेस और सब कुछ. ट्रू, ट्रू, बिल्कुल. और हमें ये चीज हमारे अंदर डाली जाती है यंग गर्ल्स के अंदर कि बेटा तुम खुश रखोगी तो तुम एक्सेप्ट होगी हाँ लाइक सोसाइटी में, हाँ हमारे देयर अंदर, इज नो अदरवाइज तुम अनकंडीशनल लव एक्सेप्ट फॉर नहीं होगे. women. Yeah, there is no unconditional love for women. That's what I've realized over time, that there is no हाँ, unconditional love. देन You have to prove yourself to people if you want to एग्जैक्टली, यू हैव टू be loved. प्रूव योरसेल्फ. एंड ये जो हम प्रूविंग की बात कर रहे हैं महीन, इट्स नॉट जस्ट फॉर 2 months, 3 months, नो, इट्स अ लाइफ टाइम. Yes, it's a lifetime procedure. It's मतलब not. दिस इज सो Yeah. अनफेयर कि आप किसी से लाइफ टाइम मांग रहे हो कि तुमने मेरी खिदमत करनी है, फिर जाके मैं सोचूंगा कि या तुम एक्सेप्ट होती हो कि नहीं. हाँ यही है. ये हमारी यही तो प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज हम लोगों को शुरू से बताया गया कि हम पावर की पोजीशन में नहीं है, औरतें पावर नहीं की है. पोजीशन में नहीं है. there is a separate entity that is in the position of power who's going to control us, who's going to tell us how you're going to live your life and how you're going to या, please everyone. Only then you will get the love that you get. So that is not unconditional love. And there is, for दैट्स नॉट women, what अनकंडीशनल. I've noticed is that कि पाकिस्तान में औरतों को अपने राइट्स भी नहीं पता. नहीं पता, वो बहुत से लोगों को नहीं they पता. think that it's okay if we are being controlled, it's okay if we're not getting unconditional love, it's okay if we're not या, getting the love that we deserve because we don't deserve it as such because हमारी माओ ने तो यही कहा है कि बेटा यही तुमने तो का सारी है. जिंदगी. So I think that is also a part of our life जिसकी वजह से औरतें चाइल्डहुड. ज्यादा डिप्रेस्ड होती हैं. हम्म. Growing up they get, but especially I think that married women, stay at home moms, स्टे I एट have an होम outlet. मॉम्स, यस. I can go out, I can talk about things, but for like जो मेरे इर्द गिर्द जो माएँ हैं जो घर पे रहती हैं सारा दिन, उनको लगता है कि उनकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है. वो पढ़ी लिखी हैं, दे आर लाइक हमने इतनी पढ़ाई की है बट हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग हम नथिंग क्या विद आवर कर रहे लाइफ, हैं. नथिंग प्रोडक्टिव विद आवर लाइव्स. और पढ़ाई हमने कर ली है तो फायदा क्या. दैट इज द मेन कॉज ऑफ डिप्रेशन इन वुमेन, व्हाट आई हैव नोटिस्ड पिछले कुछ सालों में, कि घर पे रहना जो है ना और किसी के साथ कोई उनकी कोई आउटलेट, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है किसी के साथ आउटसाइड द एंड चार दीवारी, तो फिर वो प्रॉब्लम होती एग्जैक्टली. अच्छा, महीन, बच्चे पालना इज इटसेल्फ अ जॉब.
ये बहुत बहुत बड़ी जॉब है, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक यू हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर एंड वो एक पूरी जॉब है। एंड आई थिंक हम लोग को इसलिए ये फील नहीं होती है क्योंकि वी आर नॉट रिवॉर्डेड, औरतें वी आर नॉट रिवॉर्डेड कि यार तुमने मेरा बच्चा पाल दिया, थैंक यू सो मच, यू डन एन अमेजिंग जॉब। नो, अगर बच्चे से गलती हो गई तो दैट्स औरत, तुम्हारा बच्चा है, That's तुमने true. किया That's है, true. तुम सिखा रही हो, Thank you. तुम्हारे पास रहता है। अगर बच्चा अच्छा निकला है, मेरी मेरी औलाद है, Gender मेरा roles ना, खून है। gender roles. Exactly. एग्जैक्टली जेंडर हाँ, रोल्स फिर हैं ये कि बातें मतलब स्टार्ट हो औरत की जाती है। जिम्मेदारी ये है, सोसाइटी ने जेंडर रोल्स रख दी हैं कि ये बच्चों को पालना औरत का काम है, बाहर कमाना आदमी का काम है। हालांकि जेंडर आदमी का रोल्स जो काम, है वो किसने डिसाइड किए हैं? वो आदमी ने ही डिसाइड किए हैं। सो टेक्निकली सोसाइटी ने ही द डिसाइड किए रोल्स हुए। वी आर फुलफिलिंग are also decided by men in the society. So like when या there is nothing wrong with, I think, that raising your children, but obviously when you don't get rewarded for like reward in terms of just कि आप किसी की तारीफ कर दो, किसी को थैंक यू कर दो, थैंक यू these कर are दो। very little things that you can do to just make someone smile कि यार you have done such a good job, you're doing this, अच्छा। लेकिन अगर बच्चे ने खाना छोड़ दिया, बच्चे को कोई मसला हो गया तो की जिम्मेदारी है, माँ ने तो पता नहीं माँ सारा दिन क्या करती है। तो माँ ये सारा एक दिन क्या सोच जो है करती ये है। हमारी सोसाइटी में। हाँ, और वो फिर अब ये रीजंस इतने ज्यादा हैं डिप्रेशन की औरतों में कि मतलब हम लोगों को, मैं कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी की औरतें तो बड़ी वो स्ट्रांग हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, वो लगी क्या हुई है जाते कपड़े हैं उनके। उनको पता ही नहीं है, अपने लगी हुई है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज की वो कि नहीं, वैलिडेशन अगर सीख करना। सही बात है। और उनको ये पता ही नहीं है कि अगर मेरा शौहर मुझे मार रहा है तो इट्स नॉट फाइन। हाँ, ये इट्स तो और आदमी तो हाथ ये उठा सकता है, कोई मसला नहीं है। आदमी तो उठा देता है, वो बस गुस्सा आता हम्म। है ना तो ये हो जाता है। तो व्हाट इज क्यों इट, वो क्या मसला है, क्यों नहीं पता औरतों को? वो इतनी अगर अवेयरनेस कैंपेन्स फीमेल होती बॉस हैं। होगी, फीमेल बॉस होगी उस आदमी की, तो वो क्या उस पे भी हाथ उठाएगा? नहीं उठाएगा, क्योंकि उस वक्त औरत पोजीशन पावर ऑफ पोजीशन पावर में आ जाती है। पावरफुल पोजीशन में आ जाती है, और बीवी जो है वो तो ऑब्वियसली पावरफुल पोजीशन में नहीं है, तो उस पे हाथ उठ जाता है, ओहो हाथ उठ गया। तो हाँ, बॉस क्यों नहीं उठा फिर? और प्लस जो बॉस पावर। होती है, शी कैन फायर यू। आपकी जो बेगम है उसने कहाँ जाना है, इसने यहीं बैठे रहना क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है ना। मैं है, तो हमेशा कहती हूँ इंडिपेंडेंट आपको है। को हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। यंग लड़कियां जो 15-16 साल की हैं, आई सी देम गेटिंग सो एक्साइटेड अबाउट शादी एंड ऑल, एंड आई टेल देम कि शादी इज गुड, इट्स गुड if you have a loving husband, it's a beautiful feeling, you get to live with someone and all of that, but that is not your entire life. या इट्स अ You पार्ट ऑफ have लाइफ। to study, you have to be financially independent. You इंडिपेंडेंट। know that is also a part of your life. Not जिंदगी में सिखाया जाता है तुमने बाहर जाना है, हस्बैंड के साथ चली जाना, तुमने वहां जाना है, हाँ, हस्बैंड के साथ चली जाना, तुमने ये करना है, शादी की बात कर लेना। तो वही मतलब औरत ने सारी जिंदगी वैलिडेशन सीख करनी है, और फिर जब चेंज भी आना है तो भी किसी की इजाजत से आना है। तो लाइक किसी ऑब्वियसली की दैट इजाजत। सॉर्ट ऑफ, अब obviously like if you have a good husband, he's going to support you, he's going to tell you you are doing fine, but god forbid पाकिस्तान की आवाम जैसी है, 70 से 80% जो है वो तो वैसे ही पागल है। उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि दे थिंक कि बस दे ये आ गई, अब इसको जा रही है, अब गाँव में आप चले हाँ, जाएं, गाँव में डाउरी वो सारा सिस्टम अलग है। तो फिर मैं तो कहती हूँ कि औरतों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। अभी हम लोग बहुत दूर हैं उस चीज से। लाइक बहुत माय दूर है। विजन इज दैट women should be financially independent, not just कि उनके पास पैसे हो, just because they have their own identity, this is who I am not just Yeah. someone's wife, I am also separate entity. Like if you both are separate entities, and when you come together you make a very strong household. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, माहीन, सोशल मीडिया पे असल हम लोगों ने गुफ्तगू करनी थी। आई एम सो सॉरी आई हम टुक कहाँ यू कहाँ टू चले अनदर गए? कहाँ से कहाँ जाए, दो औरतें मिल गई बस। अच्छा, एक चीज होती है, एक टर्म होती है डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, and that is के everything is on the screen, everything is available on the screen। आपको अपना ये यूज करने की जरूरत नहीं है। you just write, you just google and it's all there, it's all in front of your screen। do you think कि artificial intelligence is making our minds paralyzed and eventually जब वो अपना काम नहीं कर रहा होता है it depresses us or triggers our depression? एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। देयर इज अ बुक द ब्लैक स्वान, The इट्स black रिटन बाय swan।
Yeah, the Talib. And in that book, he talks about how human mind is engineered to only look at things they already know. Like we just want to know. Yeah, Usually we look at things, हमारा mind उसी चीज से resonate करता है somehow जो हमसे related होती है. उसमें उसने 9/11 की बात की है, उसने बहुत सारे मेजर वर्ल्ड इवेंट्स की बात की है कि हम सिर्फ उन्हीं वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में जानते हैं जो हम पे इम्पैक्ट करते हैं या जिनका true. हमसे कोई रिलेशन है. We don't really investigate, we don't read about things that don't have direct connection to us. So that is one big flaw at how human minds look at the world. I think that when you look at the world from a point of view that you just want to look at things that you connect with, then you 90% of the world को तो आप देखते ही नहीं है. True. So when you जो read आप that पे book, इम्पैक्ट कर रहा होता है. so when you read that book, after that you start looking at things, you start looking at the world in a very different way. So I always recommend my students, I always recommend everyone to please read that book because it changes the way you look at world. It changes the way you will read. अब आपके पास जितनी भी books आपके पास हैं अभी, वो वही बुक्स हैं जो आपको पसंद है या जिनके साथ आपका पसंद है. कनेक्शन है, जो अभी तूने रिकमेंड किए हैं. हैव यू एवर थॉट अबाउट फाइंडिंग बुक्स that are not somehow associated to you, that don't somehow connect to your lifestyle, or that you don't relate with? We have never tried watching a movie that doesn't connect with us on a different level. So like we never Yeah. really find out about the world outside of our own spectrum. That is the black swan, that we need to tap into the black swan if we want to really see how the world works. So I think that is the same way how artificial intelligence works, that everything is there on your phone. You have the Yeah. entire world in the palm of your hand. Now Yeah. it's up to you to step out of your comfort zone and see the world for what it is and not for how you want it to be. So I think that if we realize the importance of doing this, and that way we can, I think, move on towards the real question. Yeah, what exactly are we doing in the world? एग्जैक्टली. अच्छा, हमारी जो यूथ है, इवन जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके भी हाथ में टैब्स होते हैं. दे आर ऑन सोशल मीडिया. Guilty of that. आप एवरीबडी इज ऑन फेसबुक, एवरीबडी इज ऑन ट्विटर, लेकिन कोई भी ये चीज रियलाइज नहीं करता कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. ये क्या है, ये क्यों, व्हाट मेंटालिटी डज इट डिपिक्ट? It depicts that we are sheeps who follow the latest trends. We want to talk about it. We follow the latest trends. It's important to stay connected to the latest trends, but after forming your own opinion about things, like you know what's right and what's wrong from your own cultural standpoint as well. And then that image that we have to build. You used one of the terms, intangible currency, Yeah. in one of your program. Can you explain us what is intangible currency? Intangible. So what, when we talk about currency, it's like, it's of a monetary value to you, to me. We buy things from that value. So now when you are on social media, that is your intangible currency. That means that it's not in any physical form. It's just on social media, it's on cloud. So whatever your image is, for example, actors को देख लें, they all have this personal branding team जो उनकी पूरी branding कर रही होती है. The way they present themselves to the world. तो आई डोंट थिंक कि कोई भी अपना रियल सेल्फ होता है सोशल मीडिया पे. हर कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है. एंड टेक्निकली आई थिंक आई लुक एट द वर्ल्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे. आई डोंट थिंक दैट पीपल आर इनहेरेंटली इविल और एनीथिंग. एवरीवन इज ट्राइंग टू बी गुड, बट समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं या हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी पुरानी ऐसी चीजें जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो हमें बुरा बना देती हैं. तो वो चीज होती है. लेकिन सोशल मीडिया पे तो इफ यू लुक एट इन्फ्लुएंसर्स, यू लुक एट ब्लॉगर्स, influx of blogging and influx of influencers and people who don't have content, सिर्फ public profile कर दी, चलो जी हम influencer बन गए. They want you to aspire towards a certain lifestyle कि ये गाड़ी लो, ये कपड़े पहनो, ये ब्रांड की चीजें पहनो तो तुम ठीक हो. वही बात आ गई मटेरियलिस्टिक वैल्यूज के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोग कि ये चीज लोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी. फिर जब वो चीज आ जाती है और खुशी नहीं मिलती, तो लोग फिर कहते हैं कि ये क्या हुआ, अब तो हमारी तो सोशल मीडिया पे इतनी पर्सनालिटी बन गई है बट हम खुश नहीं हैं. लेकिन महीन ये जो कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक कर दो और ये कर दो, मतलब ये चीज बिकती भी तो है. लोग होते हैं फेमस इस चीज से. मतलब हमारी जो व्यूअर्स हैं वो लोग इस चीज को बाय कर रहे हैं. मतलब आप पब्लिक कर दो, 3 अपनी तस्वीरें आप हॉट शॉट सी लगा दो, आपके फॉलोअर्स ऐसे बढ़ते हैं.
हाँ, लड़कियों के तो स्पेशली, आपकी क्योंकि लाइफ, हमारी वहाँ और लड़कियों के तो स्पेशली बढ़ते हैं। मैंने एक्चुअली ये सोशल एक्सपेरिमेंट किया माहिन, कि मैंने मैंने एक दफा बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म की पोस्ट डाली, और लिटरली माहिन किसी ने लाइक नहीं की, किसी ने लाइक नहीं की। एंड आई और about it, मैंने I उसके always और मैंने उसके 2 दिन बाद अपनी तस्वीर लगा दी, मेरे पास 500 लाइक्स आए थे। I can understand that. That is so common. ये तो व्हाई? पाकिस्तानी है। मैं ये वो बता रही हूँ, हम मैं क्यों इतने पैरालाइज्ड हैं? ठरक और सरक कहीं भी ले जाती है। ये सही। बड़ा कॉमन मामला है पाकिस्तान में, ये कहीं भी लेके जा सकती है आपको, और ये बड़ा मतलब ये एक सैड सैड स्टेट ऑफ सैड अफेयर्स। रियलिटी है यार ये बड़ा हमारी रहा सोसाइटी की। यू डोंट वांट कि टू ब्रांड्स रीड समथिंग, हाँ, you don't want to read रीडिंग something, you just want to see something that's pleasant on the eyes. we're not feeding our souls। मैं हर वक्त यही रोती रहती हूँ, why don't we feed our souls? How हमारी can we souls do को that? रीडिंग की जरूरत है। read books, Hmm. read books, novels. Even if you read a novel, that's also good, because for a moment you are disconnected from the world, you are seeing the world from a writer's point of view, जिसने अपना mind और soul उसमें डाला है। उस किताब You में डाला are हुआ है। एग्जैक्टली, एंड देन यू रीड अबाउट थिंग्स जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा हुआ, जो चीजें आपको नहीं पता। कुछ दिन में एक चीज के बारे में नई इंफॉर्मेशन लो, कोई नई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालो, सिवाय सोचने के, जो कि आपको मतलब बेटर फील कराए कि यार मैं कुछ तो सेन हूँ अभी। लोगों की हेल्प करो। लोगों की हेल्प करने से जितना आप लोगों की हेल्प करोगे, उतना ज्यादा आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि मैंने ये देखा है। दिल को एक सुकून जो मिलता है ना, वो लोगों की हेल्प करके ही मिलता है। और वो आप हेल्प सिर्फ पैसे देके नहीं कर सकते हो, आप किसी से बात कर लो, किसी से प्यार से बात कर लो, किसी को स्माइल दे दो। हम हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहेंगे, एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, आज इसने यूं नहीं किया, आज इसने यूं कर दिया, मेरे फलाने फ्रेंड ने मुझे यूं धोखा दिया। तो आप किसके अच्छे फ्रेंड हो? ये बात। आप कहते ये हैं मेरे बात है। फ्रेंड अच्छे नहीं है, आप खुद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो सोशल मीडिया पर मेरा तो जो गोल है वो ये है कि एक तो लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, लड़कियों को वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कियों को बताओ कि जिंदगी में सिर्फ लड़कों को प्लीज करना आपकी लाइफ नहीं है, मेल वैलिडेशन नहीं सीख है। करना आपकी लाइफ नहीं है। यू हैव अ हाँ। ग्रेटर पर्पस इन लाइफ। वो भी करो, वो भी जरूर आपने, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप योर स्पाउस हैप्पी, यू हैव टू कीप योर family happy, you have to do that. Ultimately that's not something that you can just completely decline or deny, but that is not something that you should, that कि आपकी पूरी लाइफ इसके इर्द रिवॉल्व करती। अपनी खुद की पर्सनालिटी भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि लड़के बिल्कुल। तो कहते हैं कि ठीक है इसकी तो अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, हम फिर ऐसी हाँ। ढूंढ लेंगे जिसकी होगी, फिर उसको बदल देंगे। और फिर माहीन, लड़के तो ऐसी मतलब ये कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, ये बिल्कुल हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, और हम पे गुजरी हुई है। टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर जो हमें कोई फेमिनिस्ट समझ रही होंगी, नो, बट मैं लड़कों तो की ये आदत है। मैं नहीं, मैं प्ले कार्ड्स वाली फेमिनिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ कि नहीं मेरी मेरी रोटी खुद बना लो और ये कर लो, नो, मैं इस तरह वेरी की लिटिल बिल्कुल थिंग, जब फेमिनिस्ट रोटी नहीं हूँ। आप किसी को बना दोगे तो आपकी जिंदगी में अजाब नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं। I- बट ठीक है, लेकिन but the thing is कि जब आप you yourself make the women lose her identity, her life, her system, everything, उसके बाद आपको दूसरी औरत के पास चले जाते हो। Why? ये क्या है? ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने थोड़ी लाई हुई है महीन, हम औरतें थोड़ी लेके आई हैं, ये हमारे मैंने ये साथ होता है। आदमी नहीं बनाए हुए हैं, तो हमारा तो उसमें कसूर ही नहीं है। तो जनरल अब फेमिनिज्म की अगर आप फर्स्ट वेव की बात करो तो उसमें औरतों ने एक अमाउंट ऑफ राइट्स के लिए फाइट किया, फिर सेकंड वेव आई, अब थर्ड वेव चल रही है फेमिनिज्म की, जिसके थर्ड अंदर वेव चल रही है। मीटू। और अब आप देखो कि हाँ। हर हर जेंडर में अच्छे और बुरे लोग हैं। ये नहीं है कि सब औरतें अच्छी हैं और सब मर्द बुरे हैं, हर अरे नहीं जेंडर में नहीं, बुरे और हाँ। अच्छे लोग हैं। It's not a gender defined perspective, but I think what men lack in our society is that they don't understand that women are also human beings. They are Yeah. not the servants, they are not there, मतलब they are not just there in the world to please them. उनकी अपनी लाइफ है, उनको आप कॉन्फिडेंस दो, उनको सपोर्ट करो, नॉट जस्ट डोंट। आप डोमेस्टिक वायलेंस के आप विक्टिम्स को देख लें, पीपल हु हैव गॉन थ्रू डोमेस्टिक अब्यूज, पीपल हु हैव बीन अब्यूज्ड, वो सिर्फ फिजिकली अब्यूज नहीं हुए हैं, मेंटल अब्यूज के बारे में कोई नहीं मेंटली, बात हाँ, करता। बिल्कुल। 90% अवाम अगर आप देखें तो मेंटल अब्यूज का शिकार है, जिसमें ताने मारना,
बातें छुपाना, इधर घुमा फिरा के बात किसी की कर देना, और हाँ, फिर अगले झूठ को बोलना। पिंच करना, झूठ बोलना, वो सब चीजें जो है उसके बारे में तो कोई वी कांट टॉक ओपनली अबाउट दोस थिंग्स, लेकिन वो दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अभी ये जो केस हुआ है ट्विटर वाला, जिसमें दिस गाय वाज अ या फेमिनिस्ट एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट वुमेन राइट्स ऑल द टाइम, एंड अल्टीमेटली ही एंडेड आई अप किलिंग हिज ओन डोंट वाइफ। अंडरस्टैंड दिस यार, अपने मतलब घर की ये औरतों को तुम मार पार्ट ऑफ रहे हो। सोसाइटी है कि कुछ लड़के कहते हैं कि जी फेमिनिस्ट बन जाओ तो यू विल बी एबल टू स्कोर चिक्स। आई स्वेयर, आई स्वेयर। और अप, उफ, अपने घर की औरत को मारना है, बाहर की औरतों को स्कोर करना है। जो मिल गई वो तो फिर घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, दाल यही बराबर हो गए ना, मतलब। इससे तो इसको क्या जरूरत है, ये तो बैठी है ना घर में, दूसरी बताओ। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि इश्क हमेशा ना ला हासिल से ही होता है, जो हासिल नहीं होती। तो वो जो हासिल नहीं जो होती छोड़ उसकी जाती है, वो उसी जो के पीछे छोड़ जाती है ना वो बेस्ट रहती है। हाँ, बस ये एक हाँ, बड़ी वो है चीज। लेकिन वही बात है कि हम अगर जब तक हम लोग खुद नहीं अपने आप को बदलेंगे, जब तक हम खुद अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, हम खुद अपने आप को एम्पावर नहीं करेंगे, तो हम अपनी अगली जनरेशन को एम्पावर और एजुकेट नहीं कर सकते। मैं और आप तो इस सोसाइटी का 1% भी हिस्सा नहीं है। हमारी 99% अवाम जो है गाँव में जो औरतें रहती है, जो रोज डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, जिनके पास कोई बैकलॉग नहीं है जाने की, कोई लोग नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी चेंज देयर लाइफ? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस, जो हम लोग के पास ये पावर है कि वी आर अ प्रिविलेज्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी हु हैव एक्सेस टू इंटरनेट, हु आर डूइंग वेल इन लाइफ, हु हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और मतलब वो है सब कुछ। तो हम लोगों का ये गोल होना चाहिए कि वी नीड टू चेंज द वर्ल्ड फॉर अदर वुमेन जो कि नहीं कर सकती। अगर हम वैसे एक मेरे जहन में एक सवाल क्वेश्चन आया है, एंड दैट इज कि महीन, हमारे ना सोसाइटी में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही है वैसे। ये भी, ये बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल सच औरत बात है, की बिल्कुल सबसे सच। बड़ी दुश्मन औरत ही है, नोइंगली कि एक लड़का मैरिड है उसके साथ अफेयर चला लेंगी, नोइंगली हुँ, एक बार जो है किसी को पसंद करता है उसके साथ अफेयर चला। हमारे स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे ना बिल्कुल स्टैंडर्ड्स ऐसे है, ही है। हमें बस एक मतलब ये भी लॉट है। अब ये बहुत ऑफेंड हो जाएंगी औरतें, औरतों को कुछ कह दो तो वो ऑफेंड हो जाती हैं, लेकिन ये भी एक लॉट है जो कि कहती हैं कि बस सही है, खिला रहे पिला रहे एंड इट्स फाइन, बस बहुत है। वही ना, वो बात है कि बस मेरी फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करो, बस पैसे देते रहो, मैं सपोर्ट करो। ब्रांडेड चीज़ें खरीदूँ, मैं फलानी गाड़ी में जाऊँ, मैं फलाने जगह पर खाने खाऊँ, यही लाइफ तो बस मेरी नुमाइन, रहे। यही यही तो बात है कि जब औरत अपना कमाना शुरू कर देती है तो फिर उसको मर्द की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारे अंदर ये बात इंसिनुएट बचपन से की जाती है। बचपन से लड़की के अंदर बेटा, लेकिन ये अब सोचने बेटी की मुझे शिकायत मर्द लेके की आती है ज़रूरत ना, नहीं रहेगी जब मैं अच्छा कमाऊँगी, ये भी बेटी, सोच गलत है। गलत है लेकिन ये इंसिनुएट की जाती है कि बेटा बेटी जब शिकायत लेके आती है ना, बेटी जो शिकायत लेके तो क्या हुआ, खाना तो देता है ना, तो क्या हुआ, कपड़े तो दे रहा है ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी। फिर बात कुछ फिर भी लड़कियों के अंदर ये भी वही, बात आ जाती है, विच आई एम सेइंग इट्स रॉन्ग, बट इट इज देयर। दैट इज, बात फिर वही आ जाती है कि ये सोल टू सोल कनेक्शन ही नहीं है हमारे, क्योंकि हमारा अपनी सोल से ही कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमने किसी और की सोल के साथ क्या कनेक्ट करना है? हम हम अपने लोग आप को ही नहीं करते, हम अपने आप को इतनी मटेरियलिस्टिक चीजों में बांधे हुए हैं कि हम क्या करेंगे किसी और के साथ? क्या हम लोग किसी की बात बैठ के नहीं सुनते, हम सुनते हैं कि नहीं अगले को सुनते, जवाब दे, हम कोई बात नहीं सोशल सुनते। सोशल सोशल मीडिया में कोई अपनी तस्वीर लगा देना, हैप्पीली मैरिड, हैप्पीली एंगेज्ड, लड़कियां जो जिनकी शादियां नहीं हुई होंगी या जिनकी थोड़ी सी सैड लव स्टोरीज होंगे वो जेलस हो जाएंगे। इसी है, मतलब मतलब यू आप अंदर राइट किसी भी चीज़ में नहीं ढूंढ congratulations in the सकते। comment section but you don't mean it, this is social media। या दैट इज बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू बी देयर बेस्ट सेल्फ। अब अंदर की रियलिटी कोई भी, बिकॉज पावर हमारे अंदर है ना, हम क्या शेयर करते हैं। हाँ, लेकिन वही बात है कि दिस सोशल मीडिया ये हमारे अंदर ये चीज लाती है कि हम लोग कंफर्टेबल नहीं है अपना सच दिखाने में, हम अपनी आइडेंटिटीज कंसील कर लेते हैं कि हम हम फिल्टर, नहीं दिखा सकते, क्यों, क्योंकि मेरे फलाने दोस्त क्या समझेगा, मैंने तो ये बताया हुआ है, मैंने वो, क्यों, अपनी सच्चाई बताओ।
I don't belong to I don't belong to a rich family. My father is not a rich person. मुझे कोई inheritance में नहीं मिला. I am a own made woman. मैंने अपने आप को खुद from scratch बनाया. ऐसे ही है. लेकिन अब आप, you are a story, you can use this story to inspire other women to get out of their comfort zones के मतलब आपने अपने आप को खुद अपने ऊपर फोकस करना है. अब हम लोग पता है सोशल मीडिया पर हम रियल सकते हैं क्योंकि हर कोई एक दूसरे को जज करता है. अब आप सेलिब्रिटीज को ही देख लें, आप सेलिब्रिटीज को ही देख लें, वो सब क्या करते हैं. दे आर ऑल लाइंग. उनके पीछे क्या चल रहा है. देयर आर सो मेनी. सुशांत की व्हेन ही कमिटेड सुसाइड, मर्डर जो भी हुआ उसका, जो भी अभी तो पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली but he was a very happy person if you look at his videos. If you look at his, not on his social media, if you go and look at his old, like वो जो किसी भी उसमें show में आया था, he was a happy go lucky type of person who was joking around, having fun. अब अंदर उसके क्या होता है वो तो वही जानता है. That is a mystery that has gone with him. So like कभी भी हम अपने आप को जो real self है उसमें अगर खुद अपने आप को करेंगे, when we like spending time with ourselves, when we will feel कि यार हम अपनी skin में comfortable हैं, गोरे काले का हम वो फर्क खत्म कर देंगे. और टाइम लगेगा वो तो खत्म करने में. अभी भी गोरी बहू चाहिए, लंबी बहू चाहिए, हाँ गोरी चाहिए. और वो जब तक खत्म नहीं होगी मेंटालिटी, वो तब तक हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते. अच्छा, आप सोशल मीडिया में ये लाइक्स और व्यूअर्स की क्या कहानी है? ये क्या है? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? हाउ एसेंशियल देयर रोल इज? आई थिंक दैट अगर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए यू नीड टू गेट एंगेजमेंट ऑन योर पेज. If you are selling something, like for example from a marketing standpoint, you need to be आपकी marketing game बहुत strong होनी चाहिए. You need to get likes and comments. But even if you talk about it from a personal point of view, I think that for me personally, likes and comments don't matter as such. If my caption can change one person's life, even one person, for 10 minutes, if it makes them smile, even for 5 minutes, if they are trying to think about something that I'm talking about, so my job is done. I don't care if I get up mere Instagram pe I have like 10k followers, but sometimes on my pictures I won't get as many likes as I want because मेरा कैप्शन इतना लंबा होगा, उसमें इतनी मैंने चीजें फिलॉसफी अपनी है. अच्छा, ये भी तो ये भी तो सीन है ना. उनको छोटी कैप्शन चाहिए, बड़ा कैप्शन वो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि उनको पढ़ना पसंद नहीं आ रहा, उनको सिर्फ देखना पसंद आ रहा है. जो छोटा कैप्शन रखना है, क्रिस्पी रखना है, कोई कोट लगानी है, ये भी तो चीजें इतना मैटर करती हैं. मतलब सोशल मीडिया इज अ होल प्रोसीजर. ये सिर्फ एक अपलोडिंग की गेम नहीं है. mentally consuming. It's quite mentally consuming as well. It's very difficult. I think that और इसकी I think that अब जो हम इस टाइम में जिस टाइम पीरियड में हम चल रहे हैं, इसमें अगर हम ये एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि लाइक्स और कमेंट्स मैटर नहीं करते हैं, मेरा रोल इस दुनिया में ये है कि मैंने लोगों की हेल्प करनी है, मैंने लोगों की लाइफ चेंज करनी है, मैंने लोगों के लिए ये करना है जो मैं अपनी कैपेसिटी में कर सकती हूँ. आई थिंक कि ये अगर हम लोग अपने माइंडसेट शिफ्ट कर लें अगर, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम कैसे होगा. मतलब मतलब मैं अगर अपना, चलो मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ. मैं अगर ये चीज सोच रहा हूँ, चलो मैं 2 दिन कर लूंगी, मैं 3 दिन कर लूंगी, 4 एक हफ्ता चलो कर लूंगी, लेकिन द 10th डे और द 8th डे सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं आई विल बी लाइक टू हेल्प विद यू गाइस, तुम लोग इस काबिल ही नहीं है. ऐसे ही है. तो ये कैसे, मतलब स्ट्रांग होना पड़ता है ना थोड़ा सा. अगर आपने लोग क्योंकि people will hate on you for a lot of things. People have hated on me for so many things. They have hated on me for so many things. I have gone past the time where I even care about what people write about me. There was a time that I used to get bothered कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. Now I'm like, I don't care. I am going to do what I am very comfortable in whatever I'm doing. So if you have an opinion about myself, that is your opinion, not mine. But because मैंने ये एक चीज realize कर ली है कि लोगों की reactions को हम control नहीं कर सकते. We can only control our reaction towards something. So if I am going to control my reaction, I'm not going to spend my time dwelling over what the other person thinks of me. So
मैं चिल रहती हूँ, ठीक है, बोल रहे तो बोलते रहो. इफ यू डिसएग्री विद मी, दैट डजंट मीन आई एम गोइंग टू अनफ्रेंड यू और आई एम गोइंग टू फाइट विद यू ओवर दिस. ये चीज मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोग के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी नहीं देख पाते ना सोशल मीडिया पे. हम उस हाँ, बंदे नहीं को देख hate पाते. करने आते हैं बजाय इसके कि हम उसके ओपिनियन को देखें. तो आई थिंक ये भी एक बहुत ही वियर्ड चीज है जो आजकल हम लोग जिसका हम पार्ट है. ट्रू ट्रू ट्रू. अच्छा, महीन, हमारी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वालिदैन हैं, आजकल हम लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है, और जो टाइम मिलता है, और वो लाइफ बिजी क्या है, सोशल मीडिया. वो बिजी है क्योंकि बहुत कोई भी हाँ, बहुत बिजी हाँ हो गए ऐसे भाई, हम बहुत बिजी हैं. मैंने बहुत इंस्टा पे अपना सेशन करना होता है भाई, मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने पिक्चर अपलोड करनी है. ये that is हम true. बिजी हैं, और ये हम हम बिजी इस चीज हैं से अपनी फैमिली से दूर है. ठीक है, क्योंकि फैमिली. हमारा जहन तो काम कर नहीं रहा. इट्स ऑल ऑन द स्क्रीन. एज वी टॉक्ड अबाउट इट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम लोग अपने जहन से तो मफलूज हो चुके हैं, फैमिली से दूर हो चुके हैं. तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास भी फिर बच्चा कुछ सोशल मीडिया ही रह जाता है. डू यू थिंक इट इज facilitative for them, or is it still dangerous for them? अच्छा, मेरी नानो थी, मेरी नानो है वो. अब हम्म. ना उनको मैंने कहा कि आप अपना फेसबुक पे आ जाए. मैंने उनका अकाउंट बनाया है 2012 से. वो प्रॉपर हाँ. फेसबुक यूज करती हैं. अब क्वारंटीन में हम अच्छा. उनको मिलने हाउ नहीं जा क्यूट. सकते बिकॉज शी ओल्ड एंड लाइक शी हैज हेल्थ इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट. तो अब throughout that time she was using social media and she was connected to us. So I think that was a very big positive side of social media कि even during that time she had something to look forward to. कि बच्चों की या. तस्वीरें देख लूंगी, बच्चों से बात कर लूंगी सोशल मीडिया के थ्रू. सो आई थिंक कि हाँ. हर चीज के नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं. इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं. इफ यू गोइंग टू यूटिलाइज इट टू जस्ट फाइट विद पीपल, जस्ट टू अपनी ओपिनियन को थोपने वाली बात करनी है, तो आप नहीं चेंज कर सकते. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. माही, लेकिन हम लोग जो हैं, ये बात क्यों नहीं रियलाइज कर पाते? क्या है, क्या मसला क्या है हमारे अंदर? मतलब मैं तो कहती हूँ कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो बहुत उसके अंदर गलतियां हैं, और हम रियलाइज नहीं करते हैं. हमारी फैमिलीज हमसे दूर हैं, हमारे बच्चे हमसे दूर हैं, हम सोशल मीडिया के गुलाम हैं. नबी मुझे ये आपकी हम आवाज सोश कट रही थी. कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? या आई एम सेइंग कि वी आर अ जनरेशन जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां पाई जाती हैं. हम अपनी फैमिली से दूर हैं, हम बच्चों से दूर हैं, हमने अपना काम करना है, हम जो है बिजी हैं क्योंकि हमने सोशल मीडिया देखना होता है. सुबह उठते ही हम सोशल मीडिया ऐसे देखते हैं जैसे कि हमें कोई बहुत ही ऑफर आनी है, या हमने कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है. एक गुड अमाउंट ऑफ पीपल को वहां से निकाल के एक अच्छी प्रोडक्टिव साइड पे लाना कितना मुश्किल हो सकता है. कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन मी एंड यू, इन्फ्लुएंसर्स लाइक अस, कैन प्ले अ रोल इन इट? I think that by teaching them that there is also a part of social media that will help you earn money, that is, I हाँ. think, सो पैसा जो दैट्स, है ना, पैसे के through हाँ, एक मतलब हम जरिया. पैसा बताएं बेटा, यू ताकि कैन earn अर्न करो फ्रॉम इट. सोशल मीडिया पे. instead of wasting your time on fighting with people, use it to earn money, use it to build a career. और because आजकल डिजिटल नेटवर्किंग का दौर है, नेटवर्किंग के थ्रू जॉब्स मिलती हैं. ट्रू. अब वो दौर चले गए जब आप जा के सीवीज दो और फिर आपको जॉब मिले. Networking is the main element in today's world if you want to get a job. So if you're not या. networking during that time, if you're not talking to people who are doing something in their fields, then you're just literally wasting your time arguing over nothing, because your argument in the comment section is not going to change the world. It's just going एग्जैक्टली, to be एग्जैक्ट. just you proving yourself कि भाई मैं ठीक हूँ. Just listen to me. हाँ. I am बाकी demigod. सब पूरी दुनिया गलत है, मैं ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. ऐसे ही है. हाँ, बिल्कुल. ये वाली जब तक थॉट हमारे अंदर से खत्म नहीं होगी, वी कैन नॉट प्रोग्रेस. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन माइन. अब जैसे हमारा भी सेशन काफी लंबा हो गया, एंड आई एम प्रीटी श्योर लोग देखना नहीं चाह रहे होंगे इसको, क्योंकि हमने बहुत लंबा कर दिया है, क्योंकि लोगों को एक प्रोडक्टिव अच्छी चीज नहीं देखनी है. ये तो फॉर श्योर बात है माहिन. लोगों ने प्रोडक्टिव अच्छी चीज नहीं देखनी, लोगों ने पढ़ना नहीं है, लोगों ने लंबे कैप्शंस नहीं पढ़ने, लोगों ने सिर्फ अच्छी अच्छी पोपट तस्वीरों को लाइक करना है, और ये सोशल मीडिया है. बस ये सोशल मीडिया चल रहा है. हाँ. अच्छा, ये बस लास्ट मेरा एक ये क्वेश्चन है कि हाउ डू यू stay positive all the time? How do you do that? Being a digital creator and digital consultant, how do you do that? I don't think that I am positive all the time. I do get हाँ. negative
बहुत दफा human nature है, you do get negative about a certain How things. do you combat But that? I have realized over time, because of the kind of exposure that I've had all my life, I've traveled and all of that, it really made me understand that there is more to life than just fighting, arguing. And I think that I can only control my reaction towards something. So I want my reaction to always be positive. Even if someone is thinking negatively about me or is saying something negative about me, I will still help them understand, talk to me and I will clear your misconceptions about me. What is your problem with me? Discuss it with me, because that is my reaction. So I think that if we all learn to control our reaction towards Our something, we can change reaction. the world for the we can change the world Yeah. and Do make it a better you place. better place? Yeah, especially for women. Acha, Maheen, what is happiness? Does it exist? You have to find your happiness within you. If you let your happiness be dependent on other people, that is when you'll get depressed, because when you give someone, because then you can't control their reaction towards how they are going to take care of your happiness. So if you can keep yourself happy, I believe that two happy people together Yeah. will make a happy life together only. But because if one person is his happiness is dependent, like aapki dependent na ho ek dusre pe happiness, you are not co-dependent on each other for happiness. You are happy Hmm. separately, and then you come together, and then you become a happy couple, two happy friendships, two happy husband and wife, whatever it is. Yeah. So I think that happiness is within you. If you are happy, you can make other people happy. अपने आप Yes. अपने आप से खुश हो, and even if people are calling you selfish for that, stay selfish, be proudly selfish. कि हाँ, it's not being selfish, it's just prioritizing yourself. Thank you Exactly. so much, Maheen. Thank you No so problem. much. It It was was such lovely a doing this session. lovely conversation with you. True. I had so much fun. We never really we met on weddings, but we never really had this sort of an Yes, intellectual conversation. I'm glad we did we. that. I'm glad we did this, and we'll be doing it more. Next time, we'll Sure. come up with more sensitive topics, inshallah. And Inshallah. till then, thank you, Maheen. Allah Thank Hafiz. you so Take much. I care, love take care, you. everybody. Allah Hafiz. Okay.